Hello everyone. So here we are going to discuss a question from the book Physics Problems by Shashi Bhushan Tiwari. It's related to thermodynamics. So you should read the question carefully and try it. Definitely go for it because it is a very interesting question that can teach us some very interesting concepts. But let me warn you that the method that they have used to solve is slightly wrong, and therefore the answer given in the book is also wrong. So I will describe how we can correct that mistake in this video. And instead of finding the change in temperature, we have to find, let's say we are given the initial temperature T0, and then we have to find the final temperature. We cannot find the change in temperature. We can only find the final temperature given the initial temperature, right? So there is a slight difference in these two things. Let me move into the solution now. So before that, I will also give you a hint if you want to still try this problem, that it's a small hint. It's just like a hint which will help you start the problem. So there is a particle that collides with this piston initially, and the collision is assumed to be so quick that while the collision is going on, the piston is not really moving. So एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में कोलिजन हो गया, और उसके बाद पार्टिकल हैज़ लेफ्ट, पार्टिकल इज नाउ मूविंग टू द लेफ्ट, और सॉरी, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट. इनफैक्ट particle comes to rest because it's an elastic collision, so velocities get exchanged when there is an elastic collision between equal masses. So I'm assuming that you know the basics of collisions here. तो ये काफ़ी बेसिक फैक्ट है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द सेम मास, तो वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड. सो इसकी वेलोसिटी पिस्टन की 0 है और इसकी v है, तो अब फाइनली पिस्टन की वेलोसिटी v हो जाएगी और पार्टिकल की 0 हो जाएगी. And then the particle is out of the picture. Particle plays no further role in the problem. But the piston, during the collision, the piston did not move at all. और did not move at all इसका मतलब कि जो गैस के साथ जो भी प्रोसेस होने वाला है वो कोलिजन के टाइम पे नहीं हो रहा है. मतलब पहले कोलिजन हुआ, फिर कोलिजन कंप्लीट हो गया इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और उसके बाद जो गैस के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं दे बिगिन आफ्टर दैट. सो लेट अस मूव फ्रॉम देयर. तो बेसिकली व्हाट विल डू इज कि पहले कोलिजन होगा, एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन द पिस्टन इज मूविंग टू द राइट विद वेलोसिटी v, एंड इसके बाद क्या होगा दैट द पिस्टन विल मूव टुवर्ड्स द राइट. और अभी तो जस्ट बिफोर इट हैज़ मूव्ड, तो बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और गैस के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो हमें इनिशियली गिवन है कि द गैस इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पिस्टन वॉज इन इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही थी, राइट? But after it starts moving, so if it moves slightly to the right, it will compress the gas, and the pressure of the gas will increase, and therefore the gas will exert now a higher force than the force of atmospheric pressure. तो piston पे atmospheric pressure की force लग रही है from the left, और gas pressure की force लग रही है from the right. तो gas pressure की जो force होगी वो अब ज़्यादा होगी because the gas pressure is now increased due to the compression. Similarly ये वाला जो पार्ट है उस पर भी राइट से फोर्स लग रही होगी, राइट? तो ये जो पूरा दिस एंटायर वेसल का भी फोर्स डायग्राम हम बना के देख सकते हैं. सो इनिशियली यहाँ पे ये जो स्मॉल वाले पार्ट्स हैं यहाँ पे फोर्स लग रही होगी फ्रॉम द लेफ्ट, और यहाँ पे बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स लग रही होगी. जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज हैं उनकी तो हम चिंता नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज बैलेंस, दे विल रिमेन बैलेंस थ्रू आउट द प्रॉब्लम. बट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, तो इस वाले पार्ट पे राइट की तरफ फोर्स लगेगी, इस वाले पार्ट पे राइट की तरफ फोर्स लगेगी, और इस वाले पार्ट पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगी, राइट? सो देयर इज देयर आर फोर्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दिस वेसल, राइट? बट अंदर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक था, तो यहाँ पे इस पार्ट पे राइट की तरफ फोर्स लगेगी ड्यू टू द गैस प्रेशर. तो इनिशियली दिस वेसल वाज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, बट नाउ बिकॉज द गैस प्रेशर इज इंक्रीज्ड, द राइटवर्ड फोर्स ड्यू टू द गैस pressure on the vessel increases, whereas the force due to atmospheric pressure is still the same. So there is a net rightward force on this vessel, right? तो basically क्या होगा कि piston, अब if you just मतलब आपने piston को धक्का दे दिया
तो मतलब एसेंशियली यही हुआ कोलिजन से कि यू जस्ट गेव द पिस्टन अ वेलोसिटी v एंड देन अलाउड द सिस्टम टू डू व्हाट इट्स गोइंग टू डू. तो इनिशियली ये रेस्ट पे था, बट नाउ एज आई डिस्क्राइब्ड पिस्टन इज कंप्रेसिंग द गैस एंड देयरफॉर पिस्टन पे अब नेट फोर्स लेफ्टवर्ड होगी और जो वेसल है उस पर नेट फोर्स राइटवर्ड होगी. So due to these forces, the piston will decelerate and the vessel will accelerate. The gas will keep getting compressed, right? और गैस तब तक कंप्रेस होती रहेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पिस्टन राइट की तरफ मूव कर रहा है तो गैस कंप्रेस हो रही है, बट अगर ये जो वेसल है इट इज़ मूविंग एट अ हायर वेलोसिटी, अगर ऐसा हो जाए कि वेसल की राइटवर्ड वेलोसिटी पिस्टन की राइटवर्ड वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, then the gas will be expanding, right? The volume will be increasing. So whether the gas is expanding or being compressed, it depends on the relative velocity of the piston and the vessel. अगर piston की velocity right की direction में ज़्यादा है और vessel की कम है right की direction में, both are moving towards right, तो अगर piston की ज़्यादा है और vessel की कम है तो गैस compress होगी because the volume is decreasing. और अगर पिस्टन की वेलोसिटी कम है और वेसल की ज़्यादा है तो द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. सो मैक्सिमम कंप्रेशन, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन देयर इज मैक्सिमम कंप्रेशन. सो गैस वॉल्यूम इज द मिनिमम, गैस वॉल्यूम मिनिमम हो चुका है, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन हो चुका है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर निकालना है. तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब है कि इनिशियली पिस्टन इज गेटिंग डिसेलरेटेड, वेसल इज गेटिंग एक्सेलरेटेड, तो इसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी पिस्टन की और वेसल की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी. दैट मेक सेंस, राइट? बिकॉज गैस इज अंडर कंप्रेशन. एज लॉन्ग एज द गैस इज अंडर कंप्रेशन, पिस्टन पे नेट फोर्स लेफ्टवर्ड होगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक से, तो गैस का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक से, तो पिस्टन पे लेफ्टवर्ड फोर्स लगाएगी गैस, मतलब नेट फोर्स लेफ्टवर्ड होगी, और इसी तरह वेसल पे नेट फोर्स राइटवर्ड होगी. So because gas is under compression, piston will keep decelerating and vessel will keep accelerating until their velocities become equal. Until piston और vessel की velocity equal हो जाएगी, तब तक ऐसा होगा. और वो equal velocities का जो moment होगा वो maximum compression का moment होगा, कि उस instant पे piston और vessel दोनों same velocity से move कर रहे हैं, तो गैस इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन. अभी भी नेट फोर्स वेसल पे राइट की तरफ है और अभी भी पिस्टन पे नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ है. तो इसके बाद क्या होगा कि पिस्टन विल डिसेलरेट फर्दर एंड द वेसल विल एक्सेलरेट फर्दर, सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल नाउ इंक्रीज. सो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल नाउ इंक्रीज बियॉन्ड दिस पॉइंट. तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन का पॉइंट है. इसके बाद फिर कंप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर से. सो ये जो पूरी कहानी है, दिस शुड मेक सेंस टू यू. यू शुड अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस्ड. और फिर हम ये वेलोसिटी जो कॉमन वेलोसिटी होगी, तो मैंने ये क्या दिखाया है, पिस्टन की वेलोसिटी, वेसल की वेलोसिटी एंड गैस की वेलोसिटी. तो गैस इज ऑल्सो मूविंग विद द पिस्टन एंड वेसल सिस्टम. तो ये पूरा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे स्लाइड कर रहा है. हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस, सो दिस एंटायर सिस्टम इज स्लाइडिंग टू द राइट. In the process, the gas volume decreased, but gas has also acquired, all the molecules of the gas also acquired a rightward velocity. तो ये पूरा सिस्टम ऐसा दिया हुआ है कि पिस्टन का मास m है और बाकी सिस्टम गैस प्लस वेसल का मास 4m है. सो वी कैन कंजर्व मोमेंटम बिटवीन दिस इंस्टेंट एंड दिस इंस्टेंट एंड फाइंड दैट दिस वेलोसिटी इज v/5, राइट? एंड क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की तो वेलोसिटीज़ वैसे भी होती हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स तो वैसे भी मूव कर रहे होते हैं, दे आर इन थर्मल मोशन, सो दे आर मूविंग अराउंड विद वेरी हाई वेलोसिटीज. तो ये v/5 का क्या मतलब है? सो दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस. सो आई विल एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द वीडियो फर्दर कि ये इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. तो गैस को अगर एज अ सिस्टम लें पूरे को, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/5 है, टू द राइट. Right? Now
we need to find the temperature at this instant, so we will conserve energy, right? So in the entire process what is happening is that kinetic energy of the system is changing, and atmosphere is doing some work on the system. तो अगर हम इस पूरी चीज़ को एक सिस्टम मान लें, गैस प्लस पिस्टन प्लस वेसल, कंजर्विंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पिस्टन प्लस गैस प्लस वेसल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेरिक. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वर्क कैसे कर रहा है? सो लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे. So atmosphere is applying force on the system from the left and applying a force on the system from the right. तो अब ये वाले जो पार्ट्स हैं छोटे वाले, इनकी फोर्स अगर माइनस कर दें इस सरफेस की फोर्स से, तो नेट फोर्स विल बी जस्ट करस्पॉन्डिंग टू दिस मच एरिया, राइट? सो बेसिकली यहाँ से, सो लेट मी ड्रॉ द एरोज ऑल्सो. So there will be a force from this direction on this surface, and there will be a force on this direction, surface, right? यहाँ से दो फोर्सेस लगेंगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, मतलब यहाँ पे भी लगेगी एक्चुअली, बट लाइक आई एम ओनली कंसिडरिंग दिस मच एरिया. लेट मी जस्ट ड्रॉ. सो आई एम ओनली कंसिडरिंग So I'm only considering this much area, क्योंकि जो यहाँ वाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स होगी, जो इस वाले पार्ट्स पे होगी, वो यहाँ की फोर्सेस से बैलेंस हो जाएगी एनीवे. सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ऑफ द पिस्टन एंड द फेसिंग इक्वल एरिया ऑफ द वेसल. तो दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल फोर्स लगेगी, राइट? बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन टूवर्ड्स राइट इज मोर एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि अगर हम इस कंडीशन और इस कंडीशन को कंपेयर करें तो द पिस्टन एंड दिस फेस ऑफ द सिलेंडर हैव कम क्लोजर, देयर सेपरेशन हैज डिक्रीज्ड. तो इसका मतलब द पिस्टन हैज मूव टूवर्ड्स राइट मोर इन कंपैरिजन टू हाउ मच दिस फेस ऑफ द सिलेंडर इज मूव टू द राइट. इन दोनों में कुछ डिफरेंस है इनके राइटवर्ड मोशन में, राइट? I have also shown it in the diagram. This space is larger, this space is smaller because gas has gotten compressed, right? और जो गैस के जो कंप्रेशन होगा डेल्टा वी, उसको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज बीन डन बाय द प्रेशर, बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसको सिंपली ऐसे भी सोच सकते थे कि क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है, राइट? तो गैस कंप्रेस हो रही है तो एटमॉस्फेयर इज एक्सपैंडिंग अगेंस्ट द गैस. तो अगर गैस एक्सपैंड कर रही होती है तो गैस पॉजिटिव वर्क कर रही होती है, और अगर एटमॉस्फेयर एक्सपैंड कर रहा है अगेंस्ट द गैस तो एटमॉस्फेयर इज डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द गैस. सो एटमॉस्फेयर इज डूइंग पॉजिटिव वर्क. तो वाई द डेल्टा माइनस साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि डेल्टा वी हम यहाँ पे गैस का लिख रहे हैं. सो दिस इज द डेल्टा वी ऑफ द गैस. सो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर. So this is delta V of the gas. So delta V of the gas is negative, gas is getting compressed. तो एटमॉस्फेयर के लिए डेल्टा V पॉजिटिव होगा, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन ऐसे लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइम्स द डेल्टा V, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है. अगर गैस प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस होती है किसी गैस की, तो उसमें वर्क डन कैसे लिखते हैं? बाय द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस इनटू डेल्टा V ऑफ द गैस. तो डेल्टा वी ऑफ द गैस और डेल्टा वी ऑफ द एटमॉस्फेयर तो सेम है, दोनों ऑपोजिट इन साइन है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया. तो द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डेल्टा वी. एटमॉस्फेयर इज एक्सपैंडिंग अगेंस्ट द गैस एंड द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज पी नॉट. तो जो एजेंट वर्क कर रहा होता है उसका प्रेशर मल्टीप्लाई करते हैं. गैस वर्क कर रही होती है तो गैस प्रेशर मल्टीप्लाई करते हैं, right? So this is work done by the external force. There are no other external forces. There is no friction, and viscous forces and like air drag are neglected because we are not given any information about them, so we can neglect them.
but there is a work done by the atmosphere. This should be equal to the change in kinetic energy. Change in kinetic energy simply लिख सकते हैं, यहाँ पे जो kinetic energy है minus this kinetic energy plus this अदर टर्म. तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये भी एक तरीके की काइनेटिक एनर्जी है. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा था, बट यहाँ पे मैंने सी वी डेल्टा टी लिखा है. तो आई विल एक्सप्लेन दिस दैट द इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो लाइक अ काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो लाइक अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट. तो ये जो इक्वेशन आई उसको हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि दिस गिव्स अस 2/5 mv स्क्वायर. So we take it to the other side. This gives us negative 2/5 mv square. So we take it to the other side and we take this term to the right side and rewrite it like this. So Cv delta T plus P naught into delta V of the gas, V minus V naught is equal to this. अब basically हमें temperature निकालना है, final temperature निकालना है. We are given the initial temperature, so we will try to convert these P naught and V naught terms into temperature terms. So V is equal to V naught times this. So from the adiabatic relation, you should know this. You should memorize these relations. There are three of them: pressure, temperature, pressure, volume, and volume temperature. So this is the third one. And we are given that the gas is monatomic, so we get this. Finally, when we put this here, we are left with P naught V naught. And P naught V naught we can also replace by the ideal gas equation into RT naught. So we get this relation. So this relation is our final relation जिससे कि हमें टेम्परेचर के लिए सॉल्व करना है. तो अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ t to the power 3/2 kind of equation. So in theory we can solve it. If you give this equation to a computer, it will solve it for you. But we can't solve it. So I have left it like this. So this is our answer. This is our final relation. From this relation we can find the final temperature. What is wrong with the book solution is that they have neglected this. They have not considered this work done by the atmospheric pressure. तो atmospheric pressure का work अगर नहीं लेंगे तो फिर relation काफ़ी simple हो जाएगा और फिर simply यहाँ से CV delta T will become 2/5 mr square divided by CV. So that is what they have done in the book, but they have made a mistake. That is not correct. The work done by the atmospheric pressure also has to be considered, right? So this is the solution, but I want to add something extra that I want to discuss how we can write the total kinetic energy of a moving gas. So there is a relation kinetic energy of a system of particles. तो kinetic energy of system of particles in the lab frame, मतलब किसी भी inertial frame में हम कैसे लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर के टर्म्स को ऐड कर दो, मतलब सबकी kinetic energies को ऐड कर दो. vi is the velocity of the ith particle and mi is the mass of the ith particle. तो सारी kinetic energies को अगर ऐड कर दिया, so we get the total kinetic energy. But we can split this into two parts. I will tell you how to prove it. But तो in the most general case हम हमेशा ऐसे उसको split कर सकते हैं into two terms. तो ये first term is the total mass into VCM square, and the second term is the kinetic energy in the CM frame. So this is the kinetic energy of the system of particles when you go to the center of mass frame. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखने का क्या मतलब है कि जो सारी वेलोसिटीज़ है, मतलब आप काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे सारे पार्टिकल्स की, हाफ mv स्क्वायर से लिखोगे. तो एवरी टाइम यू राइट द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, वो वेलोसिटी अब ग्राउंड फ्रेम वाली वेलोसिटी नहीं है, वो CM फ्रेम वाली वेलोसिटी है. तो vi माइनस VCM, द वेक्टर डिफरेंस, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल इन द CM फ्रेम. और उसको स्क्वायर कर दिया, उसके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर कर दिया और हाफ mi से मल्टीप्लाई करते हैं. तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ith पार्टिकल इन द CM फ्रेम. तो अगर ये चीज़ पहली बार देख रहे हो तो जस्ट बेयर विद मी, जस्ट एक्सेप्ट इट कि मतलब अगर हम किसी चीज़ को काइनेटिक एनर्जी इन द CM फ्रेम बोलना है तो वो चीज़ यही होगी. ठीक है, हमने वो चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी तो हमें नई लग रही है, बट CM फ्रेम से अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी यही दिखेगी मेरे को. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द CM फ्रेम.
तो ये रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन कैसे प्रूव होता है कि अगर अब ये जो चीज़ है इसको एक्सपैंड कर लें, तो सबसे ईजीएस्ट प्रूफ यही है कि इस लेफ्ट टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करने के बजाय इस टर्म को खोल लो और इससे ऐड कर दो, तो फिर ये आ जाएगा. सो वी आई माइनस वी सी एम को हम लिख सकते हैं खोल के, एंड देन यू कैन शो दैट दिस इज करेक्ट. सो यू शुड ट्राई इट ऑन योर ओन. सो ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये सिर्फ VCM पे डिपेंड कर रहा है, टोटल मास पर डिपेंड कर रहा है. तो ये एक तरीके से ऐसा है कि ये CM की काइनेटिक एनर्जी है. तो ये मतलब CM की काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रियली मेक एनी सेंस, दैट इज व्हाई आई हैव पुट इट इन कोट्स. बट दिस इज लाइक द टोटल मास, एज इफ द टोटल मास इज जस्ट मूविंग विद द CM वेलोसिटी. कि मतलब अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो हमें सिस्टम का इंटरनल मोशन नहीं दिखाई दे रहा. मतलब दिखाई दे सकता है, बट इफ़ वी आर सफिशिएंटली फार अवे फॉर एग्जांपल फ्रॉम द सिस्टम. और जैसे कि अगर गैस को कंसिडर करें एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो गैस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. एनी गैस इज अ सिस्टम ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम उसको कंसिडर करें तो हमें इंटरनल मोशन उसका दिखाई नहीं दे रहा है. सो वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द velocities of the individual particles. The individual particles are very small, so we are not able to observe them. But if the gas is moving as a whole, the vessel is moving as a whole. जैसे इस क्वेश्चन में था कि द गैस, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, लेट मी शो यू, कि द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस इज v/5. तो ये जो v/5 वाली वेलोसिटी है, दिस इज द मोशन ऑफ द गैस दैट आई एम एबल टू ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड. कि गैस का जो पूरा पैकेट है, जो पूरा सैंपल है गैस का, वो एज अ होल कहीं जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बलून के अंदर एक गैस भरी हुई है और वो बलून इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो उस मोशन की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी होती है, और फिर इंटरनल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी होती है. और ये इंटरनल मोशन क्या है कि अगर आप CM के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उनकी क्या वेलोसिटीज है. एंड दीज वेलोसिटीज आर एक्चुअली द वेलोसिटीज दैट वी नो एज द थर्मल वेलोसिटीज. तो जो थर्मल वेलोसिटीज हैं जिनका हम बोल्ट्जमैन कर्व बनाते हैं, सो दीज आर द वेलोसिटीज एंड दे कंस्टिट्यूट द हीट कॉन्टेंट ऑफ द गैस. तो जो गैस के अंदर का जो रैंडम मोशन होता है, the motion which is on top of the CM motion, that is, you can say, the internal motion of the gas, जो बाहर से नहीं दिख रहा है. And the energy corresponding to that, the kinetic energy corresponding to that, can be called as the internal kinetic energy of the gas. And therefore I have written that for a gas, this internal kinetic energy is NCVT. So this is what we know from kinetic theory, that एक एक्सटर्नल पूरे गैस के सैंपल का कुछ वेलोसिटी हो सकता है VCM, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हो सकती है. बट दैट वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग नहीं है. द वेलोसिटीज दैट आर द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज द वन विच करस्पॉन्ड्स टू द temperature, to the thermal energy of the gas. So I hope you liked this question. It was quite a different kind of question, and although the solution from the book is not correct, the question has a lot to teach us, and there are so many interesting concepts. And कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर आए या उसका आंसर करेक्ट आए, बट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम इट एंड अप्लाइंग योर कॉन्सेप्ट्स इन द करेक्ट वे, रीचिंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू द सोल्यूशन, दैट इज़ ऑल्सो वैल्यूबल. अगर हम सोल्यूशन के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं और उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख जाते हैं, उस प्रोसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, then also we can consider that we have learned from the question. So thanks for watching.